in cohesiveness with the JKSSB had, they have advertised the post of finance accounts assistant. And the quantum of the posts are quite good, so you can prepare and qualify this examination. And I will be teaching you accounting. Like last time, when this post was advertised, we taught, I personally taught accounting. And majority of my students, they are working right now as working professionals in the industry as finance accounts assistant. So my modus operandi, my way of teaching will be same. What it was, obviously, few additions, few scrutinize. After scrutinizing my videos, I thought that there needs to be some change so that we develop it into an amazing content. So now, today I'll be sharing some insights, an introduction about the accounting. What accounting is all about. और आपका सिलेबस क्या इसमें है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, that I am going to discuss today. सिलेबस अभी इन्होंने इसके लिए एडवर्टाइज नहीं किया है, बट लुकिंग एट द ट्रेंड, इसका सिलेबस सेम, इट विल बी सेम व्हाट इट वाज लास्ट टाइम. वही सेम सिलेबस, वेरिन एक 11th क्लास का सिलेबस अगर आप देखोगे, जब बच्चा पहली बार व्हेन ही गेट्स एक्लेटमाइज्ड विद द अकाउंटिंग, जो 11th का सिलेबस होता है, आपका सिलेबस वही सिमिलर होगा. एक 11th क्लास का आप सिलेबस लीजिए विद सम एडिशंस, चाहे आप सीबीएसई का सिलेबस ले या एनसीईआरटी का या जेके बोस का सिलेबस ले, बिल्कुल सिमिलर वही होता है. बिकॉज यू नीड टू, दे वोंट बी आस्किंग यू हायर कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. You need to know the basics of accounting, जिसको हम बोलते हैं bookkeeping, introduction to bookkeeping. And our focus will be on financial accounting. Main तो वही है हमारा इसमें, financial accounting. थोड़ा सा इसमें आपको फोकस है लास्ट पे कॉस्ट अकाउंटिंग पे, और थोड़ा सा आपका है उसमें, we'll be covering that as well. But our focus primarily has to be on financial accounting. ये हमारा बेसिक फोकस इसी पे रहेगा. और सिलेबस आप देख सकते हैं, ऑलरेडी तहलील साहब ने भी सिलेबस डिस्कस किया है. जो उसमें अकाउंटिंग का कंपोनेंट है वो सेम ही रहना है. अगर अब कोई चेंज आएगी, वो चेंज भी हम पढ़ा देंगे. मगर यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस, बिकॉज इसमें आपको स्कोरिंग जो है, क्वांटम ऑफ जो इसमें है, इसमें दैट इज 30 मार्क्स अकाउंटिंग के हैं. सो इसमें सबसे प्रेसिंग जो है वो अकाउंटिंग है, क्योंकि जीएस बाकी वो तो लोग पढ़ते ही रहते हैं, और ये सबके लिए नया होगा. बिकॉज लॉट ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विल बी जेलस टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. यू हैव पीपल, हमें लास्ट टाइम बीडीएस के लोग थे क्लास में, एमएससी फिजिक्स, पीएचडी इन केमिस्ट्री, दे ऑल वेयर माई स्टूडेंट्स लास्ट टाइम. So, same way I'll be starting from the scratch, the essence of accounting, why we study accounting, and then we'll be knowing, we'll be doing the prognosis of it so that we understand each and every concept in a lucid way. So that, and I'll be doing one thing, वो हम बहुत जरूरी करेंगे. After every week, we'll be doing MCQs. Almost by the end, जब हम end करेंगे अपना कोर्स, हमने 8-9 हजार MCQs किए होने चाहिए. वो हमारा रहेगा, पढ़ाने का स्टाइल वही रहेगा जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए होना चाहिए. तो I'll start from the basics. थोड़ा एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा आज कि क्या है ये all about. Why we study accounting, accounting क्या है, क्या डायमेंशंस है इसके, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है. तो with time you will realize that obviously when you will look at the syllabus you will get to know कि भाई इसमें पढ़ना क्या क्या है. तो सबसे पहले right from the
स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन लोग बिजनेस करते आए हैं. पीपल आर डूइंग बिजनेस. अब ऑब्वियसली it has undergone an evolutionary mechanism. पहले you had bought a system, then it eventually changed. Today you have the era of generative AI, digital banking, e-commerce, shared economy. Obviously it has gone an evolutionary phase. That is it. But right from the advent of civilization, people are in the domain of business. Now you all know that business accounting से पहले अगर हम business देखें क्या है, business एक economic activity है और कुछ नहीं है. It's an economic activity. Obviously your business is the state of being busy. You take decisions, you buy the raw material, you do the value addition, you sell the raw material, or you offer services like Quintessence is doing. We are also in the business. So it's an economic activity which is started with the intention of earning profit. This is how an economic activity is differentiated from a non-economic activity. क्या है वो भाई? प्रॉफिट. इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको कोई प्रॉफिट जरूरी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी में यू आर डूइंग इट फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यूज, अर्निंग प्रॉफिट. और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें आपका वैसा कुछ ये मोटिव नहीं होता है. Now you all are aware that every business in the world which has been started right from the advent of civilization and will be started till the doomsday, their sole motive is to earn profit. All those businesses are started with the intention of earning profit. Now, I'll couple this with one more thing. You know, human mind जो human mind है, it has a limitation. ये याद रखिएगा. Human mind जो है, it has a limitation. Limitation क्या है human mind में? It cannot remember each and everything. It cannot. आपको हर कोई चीज याद नहीं रहेगी. Now I'll be comparing these two things. Now you know, a business has been started with the intention of earning profit. And simultaneously, now human mind has a limitation. It cannot remember each and everything. And today you know, the size of the businesses is enormous. So when you know that human mind has a limitation, you cannot remember each and every transaction taking place, each and every event taking place. So I used the two words here, जिसको हम बाद में इस पे एक्सप्लेन करूंगा मैं. खरीदो फरोख्त आप भी आप याद रखिएगा, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगा इनमें क्या फर्क होता है, क्या नहीं होता है. फिलहाल आप याद रखिए, बिजनेस में खरीदो फरोख्त होता है. माल लाना, माल बेचना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, टेलीफोन बिल पे करना, मुलाजिमों को सैलरी देना, रेंट पे करना, चार्जेस पे करना, टैक्सेस पे करना, इनकम जनरेट करना, सेल होना, नुकसान हो जाना. Those are all transactions and events. Now you know that human mind has a limitation. You cannot remember each and every transaction. अब जाहिर सी बात है, आपको transactions याद ही नहीं है. Human mind has a limitation. The size of the business is humongous.
ह्यूज, तो कहां आप बोल सकते हो बिजनेस की ट्रू परफॉर्मेंस? नेवर. You will never be able to judge the true performance of the business. I'll give you a simple example. Virat Kohli hai, the modern day legend, my favorite. When he plays cricket, on what basis do you say that he is the modern day great? He is the King Kohli, because you look at his records. The moment you look at his one-day performance, you say, oh my God, in these many matches, he has done this score, on this track, he has performed this, on this day, he has performed this, because that all is recorded. Had that not been recorded, you would not have been able to tell anyone, look at his performance, compare him with the other Fab Four, look how well he has performed. Look how match-winning knocks he has played. That's only possible because you have recorded the data. And then you are able to decipher that yes, Virat Kohli is way better than the other batsmen of the modern day. So that is only possible because you have systematically recorded all of his hundreds, all of his scores, all of his matches, all of his runs. Same is the case here. Apply the same model here. You start a business for earning a profit, and your motive is to earn the profit. And human mind has a limitation. भाई limitation क्या है? Limitation यही है, you cannot remember each and everything. Plus, the size of the businesses has expanded exponentially. So, जाहिर सी बात है, साइज ऑफ द बिजनेस बढ़ भी गया, वहां से ह्यूमन माइंड की वही लिमिटेशन है, तो जी क्या हो गया? लोगों की ट्रांजैक्शंस बिजनेस की बढ़ती गई. देयर आर इन्यूमरस ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस. लोगों को याद ही नहीं रहेगा भाई. तो जब याद नहीं रहेगा, क्या हम बोल सकते हैं बिजनेस ने प्रॉफिट इस साल कमाया या लॉस? नो, यू विल नॉट बी एबल टू नो. या अगर प्रॉफिट भी कमाया, क्या इसको आप कंपेयर कर सकते हो पिछले साल के साथ? नहीं कर सकते हो. क्या इसको आप इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. तो उसके लिए एक डोमेन आया जिसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं, हिसाब किताब रखना. तो अकाउंटिंग की अभी मैं डेफिनेशन नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी आप में मुझे तो यही ख्याल है, मेरे सामने जो बैठे हैं सारे या जो सुनने वाले हैं सारे, जरूरी नहीं है हर कोई आप में से MBA होगा, MCOM होगा, BCOM होगा. मुझे यही रखना है, मेरे सामने BA का भी एक स्टूडेंट है, मेरे सामने BSc वाला भी है, मेरा सुनने वाला बाकी डिस्ट्रिक्टों के दोस्त, मेरे स्टूडेंट, मेरे अजीज, कोई MSc फिजिक्स भी है, कोई MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी है, कोई ह्यूमैनिटीज से भी है, जिनको अकाउंटिंग के साथ कोई वास्ता ही नहीं रहा है. तो मुझे इस सब्जेक्ट को आपके लिए इतना सिंपल बनाना है ताकि कल को आप 11th क्लास के एग्जाम में अगर आपको बिठाया जाए, आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए. दैट विल बी माई अप्रोच, दैट विल बी माई चैलेंज, दैट विल बी माई मोडस ऑपरेंडाई, माई पेडागॉजी. वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा आपको ताकि आपको ये बिल्कुल सिंपल लगे, एज इफ आप ये सच में सीख रहे हो, इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो. सो मैं आई वोंट बी यूजिंग जॉगन्स, आई वोंट बी यूजिंग दैट टफ अकाउंटिंग वोकैबुलरी तब तक जब तक मैं इसको आपके लिए एक सिंप्लीफाइड वर्जन में प्रेजेंट ना करूं. तो अब जी हो गया, ये ह्यूमन माइंड हैज अ लिमिटेशन, और बिजनेस को हमें साइज ऑफ द बिजनेस बढ़ गया और बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए. तो इसीलिए एक डोमेन आया जिसको बोलते हैं अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग. फिर मैं ये भी आपको बोलूंगा हाउ डज इट डिफर, अकाउंट्स, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग. ये सारा हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में आता जाएगा.
अकाउंटिंग एक डोमेन आया, एक सब्जेक्ट एरिया आया, ताकि ये प्रॉब्लम है, ह्यूमन माइंड हैज अ लिमिटेशन, और अच्छी तरीके से पता चले बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, और हर कोई ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड हो सके। बेसिकली मोटिव तो वही है भाई, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, इनको रिकॉर्ड करना है। मगर क्या ये रिकॉर्ड वैसे ही करना है जैसे मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं, लेक्चर रिकॉर्ड इसलिए इस मीडियम से हो रहा है क्योंकि इसका जो मैकेनिक्स है वो यही है, मगर इसके लिए आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है कि कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है। उसी के लिए एक सब्जेक्ट एरिया बनाया गया है, दैट इज अकाउंटिंग। फिलहाल आज आपके दिमाग में यह चीज बैठ गई कि वी हैव टू रिकॉर्ड द बेसिक थिंग, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन अकाउंटिंग इज वी हैव टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। भाई इनको हमें रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करना है? बिकॉज ह्यूमन माइंड हैज अ लिमिटेशन। और ना ही उतना ही नहीं, और हमें लास्ट पे साल के आखिर में, चाहे हमारा फाइनेंशियल ईयर हो, हमें उसके लास्ट पे बोलना है हमारे बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया। हैज इट अर्न्ड प्रॉफिट और हैज इट इनकर्ड लॉस, और क्वांटम ऑफ प्रॉफिट कितना है कंपैरिजन के लिए, उसके लिए जरूरी हमें रिकॉर्ड करना है, ताकि लास्ट पे हम बोल सके हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस इनकर किया है। जैसे मैंने किंग की एग्जाम्पल दी, विराट कोहली की, अगर रिकॉर्डिंग नहीं की होती आज विराट कोहली फैंस नहीं बोलते जरा देखो इसका रिकॉर्ड, कोई तो दिखाओ हमें इस जैसा रिकॉर्ड किसका है ओडीआईज में, तो एवरीबडी गेट्स इनटू साइलेंस। जो सब जहल करने वाले एरोगेंट लोग वो चुप हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं सी तो सच बोल रहे। सेम इज द केस हेयर, यू वुड बी एबल टू से जी देखो जी हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, देखो भाई ये रहे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने सारा रिकॉर्ड किया है और आपके सामने प्रेजेंट किया है, देखो हमारे बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सो अकाउंटिंग जो है इट इज अबाउट सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब कोई मुझे बोलेगा है सर क्या बोल रहा है, इज अकाउंटिंग ओनली अबाउट रिकॉर्डिंग? नो, बट रिकॉर्डिंग इज द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जहां एंड होती है उसके बाद अकाउंटिंग शुरू होती है। वो अकाउंटिंग सच में ओनली अबाउट रिकॉर्डिंग नहीं है, मगर ये पहला बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अकाउंटिंग का है, wherein you have to record the data, you have to record the transactions and events, then you can do the classifying, summarizing, analyzing, interpreting, communicating। वो तो आगे है, वो तो अभी इश्क के इम्तिहान और है, वो तो अभी आगे पढ़ना है हमें। मगर फिलहाल आपके जहन में आज यही होना चाहिए भाई हमें तो कुछ खास सीखना है, हमें यह सीखना है भाई पहले रिकॉर्ड करना जरूरी क्यों है, बिकॉज ह्यूमन माइंड हैज अ लिमिटेशन एंड द साइज ऑफ द बिजनेसेस हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, और प्लस एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू know the performance of the business, we have to know the profitability of the business, we have to know the financial performance of the business, we have to know the financial position of the business, and for that purpose we have to record the transactions and events। तो हमने आज सीखा क्या रिकॉर्ड करना है, और साथ साथ में यह भी सीखा व्हाई रिकॉर्ड, बिकॉज ह्यूमन माइंड हैज अ लिमिटेशन, प्लस एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू मेक श्योर वेदर द बिजनेस हैज अर्न्ड प्रॉफिट और लॉस। अब आज मेरा लेक्चर मुख्तसर होगा,
कल से जो सीरीज शुरू होगी वो सिस्टमैटिक सीरीज शुरू होगी। आज मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी डाली, भाई क्या है ये ऑल अबाउट। तो कल मैं आपको एक स्टोरी मैंने खुद बनाई है, लास्ट ईयर के बच्चों के साथ भी शेयर की थी, आपके साथ भी एक स्टोरी शेयर करूंगा। उस स्टोरी में ही मैं अनरैवल करूंगा अकाउंटिंग के नुआंसेस। उसी स्टोरी से कल हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही छोटा सा था ताकि आपको एक आइडिया मिले कि भाई इसमें क्या सब पढ़ना है, और बिल्कुल भी परेशान ना हो जाइएगा। यू कैन ज्वाइन अस हियर, विल बी अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल। तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट मेरा लास्ट तक आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।